پہلی خبر، سری نگر میں 2 غیر مقامی افراد پر حملہ ہوا ہے۔ یہ دہشت گردانہ حملہ بتایا جا رہا ہے۔ شعلہ قدر سری نگر میں یہ دہشت گردانہ حملہ کیا گیا۔ حملے میں 31 سالہ امرت پال سنگھ کی موت ہو گئی ہے، جبکہ دوسرے شخص کے زخمی ہونے کی خبر ہے، جسے اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے، جس کی پہچان راہل کے طور پر ہوئی ہے۔ حملے کا شکار ہونے والے دونوں شخص کا تعلق پنجاب کے امرتسر سے ہے۔ حملے کے بعد پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا گیا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری TRF نے لی ہے۔ حملے کے بعد جموں کشمیر کی مختلف سیاسی جماعتوں نے اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ سری نگر میں 2 غیر مقامی افراد پر حملہ ہوا ہے، اور یہ جو غیر مقامی افراد ہیں ان پر جو حملہ ہوا ان میں سے ایک کی موت ہو گئی ہے۔ شعلہ قدر سری نگر میں یہ دہشت گردانہ حملہ کیا گیا۔ حملے میں 31 سالہ امرت پال سنگھ کی موت بتائی جا رہی ہے، جبکہ دوسرے شخص کے زخمی ہونے کی خبر ہے، اور دوسرا شخص جو زخمی ہوا ہے اسے اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے، جس کی پہچان راہل کے طور پر کی گئی ہے۔ حملے کا شکار ہونے والے دونوں شخص کا تعلق پنجاب کے امرتسر سے ہے۔ حملے کے بعد پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا گیا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری TRF نے لی ہے۔ حملے کے بعد جموں کشمیر کی مختلف پارٹیوں نے اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شعلہ قدر ایریا میں ملٹنٹس نے 2 نان لوکلوں پہ حملہ کیا، جس میں موقع پہ ہی ایک نان لوکل کی موت ہو گئی، اور دوسرا جو ہے وہ زخمی ہو کے جو ہے اس کو ہاسپٹل علاج کے لیے بھیجا گیا۔ بتا دیں کہ 2024 میں یہ پہلے اس طرح کی جو ہے وہ ٹارگیٹ کلنگ ہے جو یہاں پہ سری نگر میں دیکھنے کو ملی ہے، اور اس کے بعد پورا ایریا جو ہے اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورا ایریا جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہے اس ایریا کے ان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ہر آنے جانے والے ویکتی پہ خاص نظر رکھی جا رہی ہے، اور پورا جس طرح سے اٹیک ہوا ہے اس کے بعد جو ہے پورے ایریا میں سناٹا چھایا ہوا ہے، اور پورا یہ ایریا جو ہے وہ کارڈن آف ہے، اور جو حملہ ور ہے ان کی کھوج جاری ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ جو یہ حملہ ور ہے ان کو بہت جلد نیوٹرلائز کیا جائے گا۔ فیروز وانی کے ساتھ رئیس مغرے، نیٹ ورک 18 سری نگر۔ اور اس خبر پر اس وقت کیا تازہ صورتحال ہے، ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے سروش کفیل۔ سروش، ہمیں بتائیں کہ کن حالات میں اس طرح کے یہ حملے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل وصال، بتا دوں آپ کو کہ اس وقت ہم ٹھیک اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کل یہ جو 2 شخص امرت پال نامی شخص جو 31 سال کے امرتسر کے تھے، کہا جاتا ہے کہ کارپینٹر تھے، ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایک لیبر طبقے سے تھے، ان کو یہاں پہ گولی مار دی کچھ سندک لوگوں نے، اور جو ویپن یوز کیا جا رہا ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ AK رائفل ہے، لیکن اس کی ابھی کلیئرنس نہیں ہوئی۔ اس کے مزید جو دوسرے شخص تھے 25-27 نامی، ان کا نام روہت تھا، ان کو بھی کل یہاں پہ زخمی کر دیا گیا، کلوز رینج سے انہیں شوٹ کیا گیا تھا۔ کارن ابھی تک بتایا نہیں گیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ TRF جو ایک آف شوٹ ہے LET کا، انہوں نے اس کی ریسپانسبلٹی لی، اور آپ دیکھیں گے کہ جو یہ TRF ہے ان کا ایک بہت پیٹرن رہا ہے پچھلے 2019 کے بعد سے پچھلے 5 سال میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیشلی یہاں پہ جو سویلینز پہ ٹارگٹ ہوا ہے، یہ جو سویلین کلنگز ہوئے ہیں، جائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ باہر کے جو یہاں پہ لیبر کلاس کے جو لوگ ہیں ان پہ جو ٹارگٹ کلنگز ہوئے ہیں، ان کے مزید TRF سیم وہی آف شوٹ ہے جنہوں نے ابھی آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 5 سال میں جو 1-to-1 کامبیٹس ہوتے ہیں، جیسا آپ دیکھیں گے جتنے بھی یہاں پہ کچھ ٹاپ کاپس تھے یہاں پہ، اس ٹائم پہ آپ کو یاد دلا دوں کہ ڈاؤن ٹاؤن کے ایریا میں ہی جو انسپیکٹر مسرور تھے جب وہ کرکٹ کھیل تھے، ان کو کلوز رینج سے گولی ماری تھی، تو اس ٹائم پہ بھی TRF نے ہی ذمہ داری لی تھی۔ چیلنجنگ ہو جاتا ہے کیونکہ DGP جو RR سوین ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر یہ 1-to-1 کامبیٹ آتا ہے اس میں تھوڑا سا مشکلات ہو جاتی ہے، کہ اتنی بھیڑ میں جب آپ کے پاس سولو ایک بندہ آتا ہے، اس کے پاس ویپن ہوتا ہے، وہ اٹیک کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو پکڑنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ اور کل آپ نے وہی دیکھا یہاں پہ کہ TRF نے جو رسپانسبلٹی لی ہے، جو باہر کے لیبر طبقے کی جو لوگ آتے ہیں یہاں پر، ان کو پھر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس سال کا یہ پہلا انسیڈنٹ ہے، ایسے اب حالات جو ہیں ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ نارمل ہو چکے تھے، لیکن اس طریقے کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ابھی بھی جو ٹیرر آؤٹ فٹس ہے، یا جو ہم کہیں گے پاکستان ہے، وہ کس طریقے سے اس وقت یہاں پہ ایک کیوس کی سچویشن کریٹ کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ابھی کئی سارے اسپیکولیشنز ہو رہی ہے الیکشنز کو لے کے بھی، سمرز بھی آنے والے ہیں، تو کافی پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں جو اس وقت آپریٹو ہوتی ہے جموں سے یا دلی سے، وہ واپس کشمیر آئیں گی، تو سرگرمی
गर्मी जो है वो बढ़ रही है यहाँ पर, और वही देखते हुए कहीं ना कहीं जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो शायद नहीं चाहता कि यहाँ पे अमन हो, शांति हो, और उसी का एक कारण है आप देखेंगे कि इस तरीके की जो टारगेट किलिंग्स यहाँ पे हो रही है। अगर हम बात करें जो दूसरे आप कह सकते हैं कि जो दूसरे लेबर थे जिनको गोली मार दी गई, जिनको जख्मी किया गया है, वो अभी श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में उनके एब्डोमेन में गोलियां लगी हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है वो इस वक्त चल रहा है। आपने देखा होगा जो रीजनल पार्टीज है यहाँ की, उन्होंने भी मजम्मत की है इसकी, स्पेशली जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, LG ने भी कल रात को एक्स पे कहा कि वो बहुत ही ज्यादा सैडेंड और शॉक्ड है, और वो कोशिश यही करेंगे कि इस तरीके के इंसिडेंट्स जो हैं वो बहुत कम हो, और उन्होंने कहा कि हमारी जो कोशिश रहेगी, जो इस वक्त रोहित है जिसको चोट लगी हुई है, जिसको गोलियां लगी हुई है, उसको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए बेस्ट डॉक्टर्स के थ्रू, और उसने आश्वासन दिया है कि LG ने आश्वासन भी दिया है, दोनों जो अभी जो एक गुजर गए हैं अमृतपाल सिंह और जो अभी अस्पताल में लड़ रहे हैं रोहित, दोनों के फैमिलीज को आश्वासन दिया है कि किसी भी तरीके का सपोर्ट जो होगा वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। जी जी विशाल। सरोज, एक मुझे लगता है कि थोड़ा काफ़ी लंबा अरसा हो गया बीच में, और ऐसा लग रहा था कि हालात वाकई बिल्कुल बदल गए हैं, और टारगेट किलिंग का सिलसिला थोड़ा कुछ दिनों बाद ये हुआ है, बल्कि यूँ कहें कि 2024 में शायद ये पहला वाक़या है। तो ऐसे में सवाल किस तरफ उठ रहे हैं? क्या जो बाहर के लोग वहाँ पर आते हैं, चाहे जिस तरह से भी वो रोज़ी रोटी के लिए आते हो या दूसरे काम के लिए आते हो, उनकी ज़िंदगी को क्या फिर से एक बार ख़तरा लाक है? और ऐसे में उनके ख़तरे को जो है, या उनके जो ख़तरे का अंदेशा है, उसका इजाला जो है वो कैसे हो पाएगा? कितना मुमकिन है ये अब? देखिए, ये इसलिए चैलेंजिंग हो जाता है विशाल, इस तरीके के जो कॉम्बैट्स रहते हैं, जैसा हमने अभी आपसे कहा कि पिछली बार जब RR स्वयं जो है DGP उनकी जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, ये इसलिए चैलेंजिंग हो जाते हैं इस तरीके के इंसिडेंट्स को टैकल करना, क्योंकि ये 1-to-1 कॉम्बैट होता है। जैसे अभी हम आपसे कह रहे थे कि भीड़ में कोई भी आ गया, आपकी क्लोज रेंज पे वहां पे आपको शूट कर दिया, तो बिल्कुल वो पता नहीं लगता है। तो इस तरीके के कॉम्बैट जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाते हैं, और यही चैलेंजेस अब बचे हैं। देखिए, अगर आप बात करें जो ओवरऑल टेररिज्म की बात करें आप, तो वो आतंकवाद जिस लेवल का पहले होता था वो आज आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। जाहिर सी बात है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के कलेक्टिव एफर्ट्स रहे, पुलिस के कलेक्टिव एफर्ट्स रहे, आर्मी जो है इनको कलेक्टिव एफर्ट्स रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अपनी प्रेजेंस यहाँ पे फेल कराना चाहते हैं कुछ चंद लोग जो है यहाँ पे, या जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो बस अपने यहाँ पे कुछ प्रेजेंस फेल कराना चाहते हैं इस वक्त, और इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हालांकि अगर आप बात करें, जैसे आप अभी कह रहे थे, लेबर तबका जो बाहर से यहाँ कमाने के लिए आता है, उन पे इस हिसाब से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि वो ना आए यहाँ पे, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे इस वक्त जो लोग हैं यूपी, बिहार से, पंजाब से या बाकी स्टेट से जो है बिल्कुल यहाँ पे आते हैं, अपना काम करते हैं एज अ डेली वेजर्स, लेकिन हाँ, उनके लिए थोड़ा सा साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि वो शायद खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, लेकिन काम करना है उन्हें, बिल्कुल उस काम के लिए वो यहाँ पे पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप कहें तो कोई इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट पड़ता है क्या, तो कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो एक लेबर तबका है जो यहाँ पे काम करने आता है वो इन चीजों से इफेक्ट होगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है डरे हुए होते हैं, और ऐसे इंसिडेंट्स के बाद वो जो डर है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस को भी कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, कई सारी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है जो आप आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे देखेंगे, और ये चीज शायद नाखुशगवार होती है। हम कहें जो हमारे पड़ोसी हैं उनको शायद ये चीजें जो है नाखुशगवार होती हैं कि कितनी देर यहाँ पे नॉर्मल सी रह सकती है, स्टेबिलिटी रह सकती है, तो उसको डिसरप्ट करने के लिए फिर वो इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, इस तरीके के इंसिडेंट्स जो है फिर पेश आते हैं। लेकिन अब यही दुआ रहेगी कि देखिए जो इस वक्त एडमिट है हॉस्पिटल में SMHS में रोहित, वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे। और एक आपको इसमें पॉजिटिव ये बताएंगे कि जितने भी अभी तक ये टारगेट किलिंग्स हुए हैं, इनमें एक चीज जो है जो बहुत ही उम्दा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या JK पुलिस की तरफ से, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं आज तक उन सबको एलिमिनेट किया गया है। अब इंतजार यही है कि जिन्होंने ये इंसिडेंट, जिन्होंने ये हादसा यहाँ पे पेश लाया है, उनको कब पकड़ा जाएगा, नैब किया जाएगा, और उनको भी कब कानून के दायरे में इवेंचुअली उनको सजा दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका सरोज, तमाम जानकारी के लिए। हम फिर बुलेटिन के अगले हिस्से में आपके पास लौटेंगे इस बारे में और ज्यादा और अपडेट के लिए। तो सरोज काफी हमें बता रहे थे कि इन हालात में ये जो है कत्ल हुआ है, और इस वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी को काफ़ी बीफ अप कर दिया गया है, और साथ ही LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि वो उनकी जो फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ उनकी पूरी सांत्वना है, और जिस हद तक हो सकेगा वो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से उनको मदद पहुँचाएंगे। और इस वक्त एक और आपको अहम खबर दे रहे हैं। जम्मू जिले में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाले पोस्ट करने पर पाबंदी लगा दी गई है।
इस वक्त एक अहम खबर, जम्मू जिले में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। फिरका वाराना हमआहंगी को नुकसान पहुंचाने वाले पोस्ट करने पर पाबंदी लगा दी गई है। सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे पैगाम को पोस्ट करने पर पाबंदी आयद की गई है। आपको बता दें कि अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इक़दाम उठाया गया है। कल देर शाम जारी किए गए हुक्मनामे को फौरी तौर पर नाफिजुल अमल माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मेराजुन नबी मनाई गई। मेराजुन नबी के मौके पर अकीदतमंदों ने जिक्र और अज़कार में रात गुजारी। दरगाह हजरत बल में रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। इस मौके पर मुए मुबारक की जियारत भी कराई जाती है। इंशाल्लाह असलाफ से आबा अजदाद ही चलेगा। और हमें कश्मीर में जो है यही दरबार रूहानियत जो है रूहानियत सर्कुलेट करता है। ये एक सी है एंड इट कम स्मॉल स्मॉल, जो पानी निकलता इसी से निकलता, इसी दरबार जिस ये मदीने सानी है। आज महराज शरीफ का शब है। हम इधर अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए हैं, मांग रहे हैं, गुनाहों के लिए मगफिरत मांग रहे हैं, अमन मांग रहे हैं, सुकून मांग रहे हैं। ये तारीफ करा तिम चीन सान जबुन मज अल्लाह ताला करे सनियामत अता। अगर दो रात इबादत करो तम पत वश अल्लाह ताला सुन हक ना कि अस कुछ नबी सुनते। आज की जो रात है हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को महराज कराया गया। इससे पहले भी अंबिया अलैहिस्सलाम जो हुआ करते थे उनको भी महराज करवाया जाता था। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को भी महराज, और उस वक़्त जादूगरी का दौर था, उस वक़्त उन्होंने उसका तोड़ किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उसको साथ में कुछ मौजज़ात ऐसे थे कि वो तिब का मौसम था, उस वक़्त तिब के हालात चला करते थे तो वो मुर्दों को जिंदा करते थे। इसी तरीके से हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो महराज कराया गया वो अनोखा महराज है। तो उस जैसे किसी को महराज नहीं करवाया गया, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा से ऊपर लिया गया। ये लोगों ने नहीं देखा, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा और अल्लाह ने देखा। वहाँ जिब्रील भी साथ नहीं गए, वो भी साथ छोड़कर चले गए जहाँ पे अल्लाह और इस खबर पर इस वक्त ताज़ा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर रईस। इस वक्त क्या हालात हैं? रात भर यानी शब गुजारी की गई, जिक्र और अज़कार किए गए, गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी की गई और अमन व शांति की दुआएं की गई होंगी। इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? रईस, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ बिल्कुल। इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो फजर नमाज अदा हो चुकी है और अब यहाँ पे जो है मोए मुक़द्दस की ज़ियारत जो है वो दिखाई जाएगी। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब जो ज़ाहिरीन है, जो डिवोटीज़ है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ पे जो है वो उनको मोए मुक़द्दस की ज़ियारत जो है वो दिखाई जाएगी। बड़ी तादाद में जो डिवोटीज़ है उन्होंने यहाँ पे फजर की नमाज अदा की है। पूरी रात यहाँ पे शब खानी चली है जिसमें दरूद व अज़कार, नात शरीफ, नफल नमाज है और इसके साथ साथ कुरान की तिलावत हुई है। और अब जो है सुबह फजर नमाज अदा होने के बाद अब तमाम लोगों को जो यहाँ पे ज़ाहिरीन है उनको यहाँ पे इंतज़ार है अब मोए मुक़द्दस की ज़ियारत का, जो थोड़ी देर के बाद जो है वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खुसूसी दुआओं का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। खुसूसी दुआएं इस वक्त की जा रही हैं कश्मीर के लिए, पूरे मुल्क के लिए। अमन जो है, अमन अमान बरकरार रहे, यहाँ पे लोग जो है वो खुशहाल रहे और भाईचारा जो है आपस में लोगों में बना रहे, उसके लिए जो है वो खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। हालांकि सुबह का टाइम है, भीषण ठंड है और बिल्कुल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो ज़ाहिरीन है, जो डिवोटीज़ है वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला की बारगाह में कि एक खुसूसी दुआएं जो है वो मांगी जा रही है पूरे कश्मीर के लिए, मुल्क के लिए। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो डिवोटीज़ की बड़ी तादाद है वो यहाँ पे दरगाह हजरत बल में जो है वो शब खाने के लिए आई है। और अभी भी उनका जोश जो है वो देखते ही बनता है। बिल्कुल अभी भी जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में जो डिवोटीज़ है वो यहाँ पे आए हैं, दुआएं हो रही हैं और पूरी रात जो है ये इसी तरह दुरूद व अज़कार चलते रहे हैं। खुसूसी दुआओं का एहतमाम हुआ और यहाँ इस वक्त दरगाह हजरत बल में, जो कि
کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑی درگاہ ہے جہاں پہ کشمیر کے مختلف اضلاع سے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں، اور اسی طرح باقی جو یہاں پہ میجر شرائنز ہے وہاں پہ بھی اسی طرح جو ہے وہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہوا، کیونکہ شب معراج کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک مقدس رات ہے جس میں دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خصوصی دعاؤں کا یہاں پہ ابھی جو ہے وہ اہتمام ہو رہا ہے۔ جی وصال۔ رئیس، یہ جو موئے مبارک کی جو زیارت ہے اس کا سلسلہ کب سے چلا رہا ہے، اور آج یہ سلسلہ جب شروع ہوگا تو اس میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں؟ رئیس، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ رئیس، میرا سوال یہ ہے کہ موئے مبارک کی جو زیارت کا سلسلہ ہے وہ بالکل، کب جس طرح شروع سے ہوگا؟ ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے یہاں پہ موئے مقدس کی جو زیارت ہے وہ دکھائی جائے گی، اور لگاتار ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ حالانکہ صبح کا ٹائم ہے، بھیشن ٹھنڈ ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو زائرین ہیں، جو ڈیووٹیز ہے، وہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اس بار جو ہے وقف بورڈ نے خصوصی انتظامات یہاں پہ رکھے تھے، یہاں پہ ریفریشمنٹ کا انتظام رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہاں پہ پراپر ہیٹنگ ارینجمنٹس کا جو پراپر ہیٹنگ ارینجمنٹس ہے وہ بھی ان پلیس رکھے گئے تھے تاکہ جو زائرین ہیں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور بالکل آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی صبح کا ٹائم ہے، کافی یہاں پہ بھیشن ٹھنڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈیووٹیز ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں پورے ملک کے لیے، پورے کشمیر کے لیے، کہ یہاں پہ امن و امان برقرار رہے، اور بالکل آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے یہاں پہ موئے مقدس کی زیارت جو ہے وہ دکھائی جائے گی، اسی کا یہاں پہ ویٹ ہو رہا ہے، بالکل لوگ کھڑے ہیں، آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ابھی جو ہے وہ اسی کا انتظار ہے، یہاں پہ درود خوانی ابھی ہو رہی ہے، درود و اذکار ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ زیارت دکھائی جائے گی، اور تمام لوگ جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں زائرین کھڑے ہو رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو موئے مقدس کی زیارت نصیب ہوگی، تو اسی کا یہاں پہ جو ہے وہ ویٹ ہو رہا ہے۔ جی وصال۔ رئیس، جو منظر ہم دیکھ پا رہے ہیں وہ کافی بالکل عقیدت سے بھرپور نظر آ رہا ہے، اور جیسا آپ نے بتایا کہ موئے مبارک کی زیارت کا سلسلہ اب شروع ہوگا، تو جو تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں اس میں جو خواتین ہیں وہ بھی کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں، کیا ان کے لیے بھی الگ سے تمام انتظامات رہتے ہیں، اور کیا خواتین نے بھی شب گزاری کی ہے، ایک طرف مردوں نے بھی کی ہوگی، تو کس طرح کے انتظامات وہاں رہتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے، جنہوں نے اس شب خانی میں حصہ لیا ہے، پورا ان کے اندر جو ہے وہ جوش دکھ رہا ہے، اور عقیدت و احترام کے ساتھ انہوں نے بھی یہاں پہ جو ہے وہ شب خانی میں حصہ لیا ہے، خصوصی دعائیں جو ہے یہاں پہ ابھی بھی جاری ہے، اور اب موئے مقدس کی جو زیارت ہے وہ بالکل یہاں پہ جو ہے وہ دکھائی جائے گی، بالکل لوگ جو ہے وہ جو زائرین ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہے وہ ایک ساتھ بالکل یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے تعداد میں یہاں پہ آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ آئے ہیں، اور لگاتار ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ظاہرین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے، اور موئے مقدس کی زیارت کا سب کو جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر بعد بالکل تیاری ہو رہی ہے زیارت دکھانے کی، اسی لیے جو زائرین ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کو اسی کا انتظار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری رات یہاں پہ جو ہے وہ درود و اذکار چلے، تلاوت قرآن کی تلاوت ہوئی، نفل نمازیں ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ خصوصی دعاؤں کا جو اہتمام ہوا ہے، بالکل آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی موئے مقدس کی زیارت دکھانے کا جو ہے وہ سمے آ گیا ہے، ٹائم آ گیا ہے، بالکل اب تھوڑی دیر میں جو ہے یہاں پہ لوگوں کو موئے مقدس کی زیارت نصیب کرائیں گے، دکھائی جائے گی، تو اسی کا سب کو یہاں پہ انتظار ہے، اور بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے مرد ہے اور دوسری طرف سے عورتیں ہیں جو اس موئے مقدس کی زیارت کا انتظار کر رہے ہیں، فجر نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے اب لوگوں کو اسی کا انتظار ہے، اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، کیونکہ اب تھوڑی دیر میں جو ہے یہاں پہ موئے مقدس کی زیارت جو ہے وہ دکھائی جائے گی۔ جی وصال۔ رئیس، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہم آپ کے پاس جلد لوٹیں گے، اور تب تک کچھ اور لوگوں سے بات چیت جو کی گئی ہے وہ کیا اس موقع پر کہنا چاہتے ہیں، ان کے اظہار رائے کیا ہے، وہ کس طرح کی دعائیں کر رہے ہیں کہ انہیں کیا حاصل ہو، یہ بتاتے ہیں۔
हजरत बल में काफ़ी अच्छे इंतजाम रखे थे और खुसूसी यहाँ पे जो है वो अरेंजमेंट्स रखे गए थे। हमारे साथ है वक्फ बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेटर है दरगाह हजरत बल के खुर्शीद अहमद बानी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार शब महराज पे क्या कुछ खास इंतजाम उन्होंने कर रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज शब महराज है। यहाँ पर कश्मीर में सबसे बड़ी ज़ियारत गाह यहाँ हज़रत बल, और यहाँ पर लाखों लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए। और आज पहला शब है यहाँ पर। आज हमने सर्दी को मद्देनज़र रखकर आप देख रहे हैं कि हमने टेंट्स भी लगाए, हमने फर्श फुरुश के लिए बाज़ाब्ता कालीन बिछाए हैं। इसके अलावा वज़ू खाने या सफाई का या साउंड सिस्टम का इंतज़ाम हमने खुद किया है, क्योंकि अंदरूनी जो इंतज़ाम होता है वो वक्फ बोर्ड के हाथ में होता है। और हमने सब कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पर अंजाम दिया ताकि किसी ज़ायरीन को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा हमने आज मैडम डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा की हिदायत पर कल हमें शाम हिदायत मिली है कि यहाँ पर ज़ायरीन के लिए खाने पीने का इंतज़ाम रखा जाए। और बाज़ाब्ता नमाज इशा के बाद हमने आप देख रहे हैं इस टेंट में हमने बाज़ाब्ता रखा था खाने पीने का इंतज़ाम, और हमने ज़ायरीन में वो बाज़ाब्ता तकसीम किया। और इंशाल्लाह रात भर यहाँ चाय भी ज़ायरीन के लिए बहम रखी जाएगी। जिस तरह से हम पहले देखते थे कि खाना साथ लाते थे ज़ायरीन, उसके बाद जो है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती थी, तो इस बार जो है उस तरह की परेशानी देखने को नहीं मिल रही। और क्या क्या इंतजाम है जो आपने इन प्लेस रखे हैं ताकि जो ज़ायरीन है उनको परेशानी ना हो? हमने यहाँ पर जहाँ जो ज़्यादातर यहाँ पर जो ज़ायरीन की शिकायत थी कि वो सर्दी के मौसम में यहाँ पर पॉलीथीन पर नमाज पढ़ती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं, आप खुद देखिए और कैमरा से देखिए, आप गिलास बाग से लेकर नीचे तक हमने सब जगह कालीन बिछाए है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। यही वजह है कि आज मतलब दूर से चाहे कुपवारा से बारामूला से आते थे ज़ायरीन, वो उनको खाना पीना साथ लाना तो होता था, लेकिन आज वक्फ बोर्ड ने पहले ही ऐलान किया है कि आज वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम रखा है, और वो ये रात भर जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भीषण ठंड है, गर्मी के क्या इंतजाम, हीटिंग अरेंजमेंट्स किस तरह के हैं? बाज़ाब्ता अगर ज़ियारत आलिया के अंदर आप जाएंगे, बाज़ाब्ता वहाँ पर हीटिंग लगी हुई है, हीटिंग का इंतजाम रखा गया है। इसके अलावा हमने यहाँ जो पहले जो कनापी है इसके नीचे बाज़ाब्ता गैस सिलेंडर्स लगाए, हमने बाज़ाब्ता दोनों तरफ से लगाया गैस, ताकि किसी किस्म का कोई सर्दी की वजह से किसी ज़ायरीन को कोई प्रॉब्लम ना हो। पिछले साल के मुकाबले में इस बार अलग क्या है यहाँ इंतजामात को लेकर? यहाँ अलग है तो एक तो हीटिंग का, गर्मी का हमने इंतजाम रखा है, ऊपर से जो हमने खाने पीने का इंतजाम, ये पहली बार हुआ है औकाफ में, वक्फ बोर्ड के इतिहास में ये पहली बार हुआ। हमने बाज़ाब्ता रात भर के लिए चाय रखी है ताकि ज़ायरीन आए और आराम से पिए और किसी किस्म का ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। ये अलग इंतजाम था आज, एक तो हीटिंग, नंबर 2 खाने पीने का इंतजाम। जिस तरह से आपने देखा, ये थे एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड के जो बता रहे थे कि दरगाह में उन्होंने खुसूसी इंतजाम इस बार किए हैं और पहली बार यहाँ पे रिफ्रेशमेंट और हीटिंग अरेंजमेंट्स रखे गए हैं ताकि जो ज़ायरीन है उनको कोई परेशानी ना हो। फिरोज वानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। तो हमारे नुमाइंदे रईस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर पहले जब उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की थी तो आपने सुना कि लोगों के तासुरात क्या थे। रईस, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं और मेरा सवाल यही है कि क्या मोए मुबारक के ज़ियारत का सिलसिला शुरू हो चुका है? और जो तस्वीरों में आप एक गुंबद नुमा जो एक वो हरे रंग की जो छोटी सी गुंबद नजर आ रही है, वो जो तस्वीरों में हम बार बार दिखा रहे हैं, वो क्या है दरअसल? क्या मोए मुबारक वहां पर ही रखा गया है और वहां पर एक एक करके जो है वो ज़ायरीन जाएंगे और ज़ियारत करेंगे? रईस, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे सुबह होती जा रही है और रोशनी जो है वो खिलती जा रही है, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि शब गुजारी के बाद यानी रात का पूरा वक्त, ज़्यादातर वक्त जो है वो शब गुजारी यानी ज़िक्र व अज़कार और दुआएं, तिलावत कुरान और इन तमाम और नफिल नमाजें, इन सब से होता हुआ यह शब गुजारी मुकम्मल हुआ है। और उसके बाद अब आप देखें कि
जो वहाँ पर हाज़रीन जो मौजूद हैं, जो मोए मुबारक की ज़ियारत करना चाहते हैं, वो वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और इनमें दोनों तरह के लोग हैं, इनमें मर्द भी हैं, इनमें ख़वातीन भी हैं। और चूँकि ये जो मौका है वो मेराजुन नबी, यानी वो मौका ऐसा होता है जब ये माना जाता है, जो बताया गया है कि वही शब थी जब मेराज पर गए थे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसी मुनासबत से इस रात की अहमियत जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। रईस हमारे साथ मौजूद हैं। रईस, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि क्या मोए मुबारक की ज़ियारत का सिलसिला शुरू हो चुका है, और दूसरा सवाल ये है कि ये ज़ियारत किस तरह से कराई जाती है? क्या फ़र्दन फ़र्दन लोग किसी ख़ास मकाम पर जाते हैं, वहाँ उसे देखते हैं, या कुछ और तरीक़ा है? बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी रात जो है यहाँ पे खानी हुई है, और इसके साथ साथ जो अज़कार हुआ है नात खानी हुई है। और अब से थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे मोए मुक़द्दस की ज़ियारत जो है वो दिखाई जाएगी। बिल्कुल आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जो तमाम ज़ायरीन हैं, जो डिवोटीज़ हैं, वो खड़े हो रहे हैं, उनका इंतज़ार है मोए मुक़द्दस की ज़ियारत का। उससे थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे ज़ियारत दिखाई जाएगी, और तमाम जो एक साइड से औरतें हैं, दूसरी तरफ से जो मर्द है, वो तमाम इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पे जो है वो मोए मुक़द्दस की ज़ियारत दिखाई जाएगी। सुबह का टाइम है, लेकिन उसके बाद जो ज़ाहिरीन है उनमें जो है वो काफ़ी जोश पाया जा रहा है। वो शादी करने के बाद अभी उनको इंतज़ार है मोए मुक़द्दस की ज़ियारत का। और जैसे हम बता रहे थे आपको, इस बार यहाँ पे खास अरेंजमेंट्स रखे थे, रिफ्रेशमेंट यहाँ पे हीटिंग अरेंजमेंट्स भी किए गए थे। तो लगातार जो हम यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो डिवोटीज़ है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला से, मुख्तलिफ इलाकों से, दूर दराज इलाकों से यहाँ पे जो है वो ज़ाहिरीन पहुँचे हैं। बता दें कि दरगाह हज़रत बल में सबसे बड़ा जो है वो मजमुआ होता है, सबसे ज़्यादा ज़ाहिरीन की तादाद होती है। और इसके साथ साथ जो और भी मेजर श्राइन्स है कश्मीर के, वहाँ पे भी इसी तरह के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दरगाह हज़रत बल की है, जहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो मजमुआ, सबसे ज़्यादा ज़ाहिरीन की तादाद जो है वो पाई जा रही है, जिन्हें इंतज़ार है अभी मोए मुक़द्दस की ज़ियारत का। और बिल्कुल यहाँ पे खुसूसी दुआओं का एहतमाम हो रहा है, और इसी के बाद जो है यहाँ पे मोए मुक़द्दस की ज़ियारत जो है वो दिखाई जाएगी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो ज़ाहिरीन है उनको अभी इंतज़ार हो रहा है ज़ियारत का, और लगातार यहाँ पे वो जो है ज़ाहिरीन दुआ कर रहे हैं। एक तरफ से औरतें हैं, दूसरी तरफ से मर्द है, और इसके साथ साथ बच्चे और बुजुर्ग भी जो है वो इन खुसूसी दुआओं में जो है वो शामिल है। बिल्कुल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अभी जो डिवोटीज़ है उनको इंतज़ार है मोए मुक़द्दस की ज़ियारत का, जो अब से थोड़ी देर बाद जो है दिखाई जाएगी। जी विशाल। जी रईस, मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि ये जो हाज़रीन हैं ये काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं, और मोए मुबारक की जो ज़ियारत होगी, तो मैं ये जानना चाह रहा था क्या ये ज़ियारत में काफ़ी वक्त लग जाएगा, और लगभग कितना वक्त लगेगा कि जब ये ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी होगी, और किस तरह से ये जो अभी सिलसिला है उसका इख्तिताम होगा? जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कल शाम से ही हमने देखा कि बड़ी तादाद जो है ज़ाहिरीन की वो यहाँ पे पहुँची है। और तस्वीर में आप बिल्कुल तस्वीर में देख रहे हैं कि एक बड़ा मजमुआ है, लोगों की बड़ी तादाद है ज़ाहिरीन की जो यहाँ पे मौजूद है। जैसे आपने पहले भी कहा कि जो कश्मीर के और मेजर श्राइन्स है वहाँ पे भी इसी तरह के जो मनाजिर है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दरगाह हज़रत बल में सबसे बड़ी गैदरिंग, सबसे ज़्यादा ज़ाहिरीन आते हैं। यही वजह है कि ये जगह ख़ास है।
इस तरह के जो जब शब महराज होता है, शब कद्र होता है, तो सबसे ज़्यादा लोग जो है जो ज़ायरीन है वो यहीं पे पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी यहाँ पे जो है वो दरगाह है जहाँ पे इस तरह के बड़े मजमुए जो है वो देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे जो ज़ायरीन है उनको इंतज़ार है, जो हाज़रीन है उनको इंतज़ार है मोए मुक़द्दस की ज़ियारत का। बिल्कुल आप हमारे सामने देख रहे हैं कि अब तैयारी हो रही है ज़ियारत दिखाने की, मोए मुक़द्दस की ज़ियारत दिखाने की, और लोग जो है वो खड़े होके बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको मोए मुक़द्दस की ज़ियारत नसीब होगी। तो उसी का यहाँ पे वेट हो रहा है। यहाँ पे लगातार जो खुसूसी दुआएं हैं उनका एहतमाम हो रहा है और अब तैयारी हो रही है मोए मुक़द्दस की ज़ियारत लोगों को दिखाने की। तो जो आप बिल्कुल हमारे सामने तस्वीरें देख रहे हैं, वहीं पे मोए मुक़द्दस की जो है वो ज़ियारत दिखाई जाएगी। तो जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद इस ज़ियारत का मुंतज़िर है, इंतज़ार कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भीषण ठंड जारी है। सुबह के वक्त अगर हम कश्मीर की बात करें तो अभी जो है सुबह के वक्त ज़्यादा ठंड होती है, जो टेम्परेचर्स है, जो दर्जे हरारत है वो माइनस में होता है। तो यही वजह है कि उसके बावजूद भी यहाँ पे जो ज़ाहिरीन है उनका जोश देखते ही बनता है। पूरी रात शबखानी करने के बाद अब उनको इंतज़ार है मोए मुक़द्दस की ज़ियारत का। जी विशाल जी, ये कुछ जो वहाँ पे एक साहब हैं वो कुछ क्या ज़िक्र अज़कार के लिए या कुछ और किस चीज़ के लिए वो कुछ इशारे कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है आप जरा बताएं हमारे नाज़रीन को। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मोए मुक़द्दस की ज़ियारत दिखाने का जो है वो समय आ गया है। अब से कुछ पल बाद यहाँ पे ज़ियारत दिखाई जाएगी। अभी जो है वो खुसूसी दुआओं का एहतमाम हो रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो दुआ कर रहे हैं, किस तरह से लोग जो है वो जो ज़ाहिरीन है वो किस तरह से यहाँ पे जो है वो खुसूसी दुआओं में अभी हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में अमन व अमान के कायम हो, ये दुआएं की जा रही हैं। मुल्क जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, उसके लिए दुआएं की जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो भाईचारा है, सिंधु मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारा है वो बना रहे, कश्मीर जो है वो शांत रहे और पूरा मुल्क जो है वो तरक्की करे, उस तरह की खुसूसी दुआएं जो है वो यहाँ पे अभी की जा रही हैं। बिल्कुल आप हमारे सामने देख रहे हैं कि मोए मुक़द्दस की जो ज़ियारत है वो यहाँ पे लोगों को दिखाई जा रही है। बिल्कुल तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि हमारे सामने मोए मुक़द्दस की ज़ियारत जो है वो लोग कर रहे हैं, लोगों को दिखाई जा रही है। और इसी पल का जो है वो सुबह यहाँ पे लगभग 3 बजे से ही लोगों को इंतज़ार था और अब वो घड़ी आ गई है, वो पल आ गया है जब लोग जो है वो मोए मुक़द्दस की ज़ियारत कर रहे हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं कि जो मोए मुक़द्दस की ज़ियारत है वो दिखाई जा रही है। और ऐसे में जो ज़ाहिरीन है, जो यहाँ पे हाज़रीन है, जो डिवोटीज़ है, वो खास दुआएं कर रहे हैं। इस मोए मुक़द्दस की ज़ियारत को देखते हुए लोगों के आंखों में आंसू है। लोग अपने गुनाहों के लिए मग़फ़िरत अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में लोग आजिज़ी से जो है वो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनके आने वाले फ्यूचर को ब्राइट बनाए, इसके साथ साथ उनके गुनाहों को माफ़ करे और उन्हें अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजारने का तौफीक दे। तो इस तरह की खुसूसी दुआएं जो है वो यहाँ पे लोग कर रहे हैं। और मोए मुक़द्दस की ज़ियारत बिल्कुल आप देख रहे हैं हमारे सामने दिखाई जा रही है। और ऐसे में जो डिवोटीज़ है, जो ज़ाहिरीन है, वो उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो अपने गुनाहों का कुफारा कर रहे हैं, गुनाहों की मग़फ़िरत मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। और इसके साथ साथ पूरे कश्मीर और मुल्क के लिए दुआओं के में वो मशगूल है, उनके लिए, मुल्क के लिए अच्छी दुआएं कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छी दुआ कर रहे हैं, खासकर कश्मीर के शांति के लिए दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पे अमन व अमान कायम हो, लोग जो है वो शांति से रहे, भाईचारे से रहे। तो इस तरह के खुसूसी दुआओं का यहाँ पे एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। और मोए मुक़द्दस की ज़ियारत जो है वो हमारे सामने आप देख रहे हैं कि वो लोगों को ज़ियारत नसीब हो रही है। और ऐसे में हम भी खुश नसीब है कि हम भी मोए मुक़द्दस की ज़ियारत जो है वो कर पा रहे हैं, हमें हमारे नसीब में भी ये पल आया है। तो पूरा अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ज़ाहिरीन है वो पूरे जोश व जज्बे, अकीदत व एहतराम के साथ जो है वो ये ज़ियारत उनको नसीब हो रही है, वो ये ज़ियारत कर रहे हैं। और साथ ही साथ
उनके लोगों के जो ज़ाहिरीन है उनकी आंखों में आंसू अब तस्वीर में देख रहे हैं कि वो अपने गुनाहों की मगफिरत अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। इसके साथ साथ वो पूरे कायनात के लिए, पूरे कंट्री के लिए, पूरी कश्मीर के लिए, कश्मीर वैली के लिए खुसूसी दुआओं में जो है वो अमन मांग रहे हैं, तरक्की मांग रहे हैं। और यहाँ पे जो है सुबह से इस पल का इंतज़ार था। फजर नमाज के बाद ही जो है लोग इसी का इंतज़ार कर रहे थे और तमाम लोग यहाँ पे खड़े होके जो है वो मोए मुक़द्दस की ज़ियारत कर रहे हैं। और बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कश्मीर के दरगाह हज़रत बल की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर की सबसे बड़ी ये दरगाह है और यहाँ पे मोए मुक़द्दस की ज़ियारत जो है वो अभी दिखाई जा रही है, जिसका ज़ाहिरीन को काफ़ी देर से इंतज़ार था। तो लगातार हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कि ज़ाहिरीन जो है वो इस मोए मुक़द्दस की ज़ियारत कर रहे हैं। और तस्वीर में आप देख रहे हैं एक तरफ से मर्द है, दूसरी तरफ से औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग यहाँ पे जो है वो खुसूसी दुआओं में इस वक्त जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से हम यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो ज़ाहिरीन है वो दुआओं में जो है वो मशगूल है, दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कश्मीर है ये शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे शब करने के बाद अब लोग जो है वो मोए मुक़द्दस की ज़ियारत कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि जो ज़ाहिरीन है उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो दुआओं में जो है वो मशगूल है। और बिल्कुल हमारे सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो ज़ाहिरीन है वो किस तरह से इनको इस मोए मुक़द्दस की ज़ियारत का इंतज़ार था। जो हम आपको तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं कि एक तरफ से मर्द है, एक तरफ से जन है। और पूरी रात यहाँ पे जो है शब खानी हुई, नाते कलाम पाक पढ़ा गया, नात शरीफ पढ़े गए, कुरान की तिलावत हुई, नफल नमाजी जो है वो ज़ाहिरीन ने अदा की। और उसके बाद अब सुबह ये घड़ी आ गई है। बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मोए मुक़द्दस की जो ज़ियारत है वो ज़ाहिरीन को नसीब हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिठाइयाँ जो है वो बांटी जा रही है। और साथ ही साथ जो मोए मुक़द्दस की ज़ियारत है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है, ज़ाहिरीन के वो नसीब में आ रही है। और साथ ही साथ हम भी खुश नसीब है कि हम भी मोए मुक़द्दस की ज़ियारत कर रहे हैं। और तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीरें हैं इस कश्मीर के दरगाह हज़रत बल की, जहाँ पे अभी जो है वो मोए मुक़द्दस की ज़ियारत दिखाई जा रही है। एक तरफ से मर्द है, एक तरफ से औरतें हैं। और ऐसे में खुसूसी दुआएं जो है वो ज़ाहिरीन मांग रहे हैं कश्मीर के लिए, अपने लिए, पूरे मुल्क के लिए कि अमन व अमान बरकरार रहे और कश्मीर और पूरा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की करे। और साफ तस्वीरों में आप देख अपने गुनाहों की मगफिरत मांग रहे हैं, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ कर रहे हैं। और अपने जो उनके माँ बाप हैं, जो लोग हैं, उनके लिए मगफिरत की दुआ लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बड़ी तादाद में ज़ाहिरीन आए हैं जिन्होंने यहाँ पे मोए मुक़द्दस की ज़ियारत की है। और अभी भी यहाँ पे मोए मुक़द्दस की जो ज़ियारत है वो दिखाई जा रही है। और ज़ाहिरीन जो है वो ख़ुसूसी दुआओं में इस वक्त जो है वो मशगूल है, वो मसरूफ़ है। और ऐसे में बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल रईस, आप हमारे साथ बने रहे। ये तस्वीरें इस वक्त लोग देख रहे हैं और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं ये दरगाह हज़रत बल से, जो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़ दरगाह हज़रत बल। और यहाँ पर हुजूर यानी जो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक दरअसल कहते हैं सिर के बाल को। तो चूँकि हिज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर यानी पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर के बाल उतरवाए थे और वहाँ पर मौजूद सहाबा कराम ने उसे तक़सीम किया था। तो रिवायतों के मुताबिक ये बातें सामने आती हैं कि वही मुँह मुबारक जो है वही वो कई हिस्सों तक पहुँचा लोगों के ज़रिए से। और जो यहाँ जो इस वक्त श्रीनगर में जो भीड़ इकट्ठा है, जो अक़ीदतमंदों की जो वहाँ पर हाज़िरी है, दरअसल ये इसलिए वहाँ जमा हुए हैं कि ये भी उस मुँह मुबारक का दीदार कर सके। मुँह मुबारक यानी पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के बाल, जिसे मुँह मुबारक कहा जाता है, जो
हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर ने अपने सर के जो मुँह मुबारक उन्हें उतार कर तकसीम किया था। तो रिवायतों के मुताबिक वही मुँह मुबारक जो है कई जगहों पर जो है वो मौजूद है और बाज़ाब्ता ख़ास तौर से मेराजुन नबी यानी जो शब मेराज होती है, जिस शब के बारे में ये वाक़या है कि जिस शब पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए थे और दीदार इलाही से वो सरफराज हुए थे। तो वो शब गुजारी के बाद जो दरगाह हज़रत बल है वहाँ पर ये रिवायत रही है कि वहाँ नमाज फ़ज्र के बाद अगली सुबह जो होती है तो जो मुँह मुबारक वहाँ मौजूद है उसे ज़ायरीन के दीदार के लिए जो है वो पेश किया जाता है और ज़ायरीन जो है दूर से ही उस मुँह मुबारक की ज़ियारत करते हैं, उसका दीदार करते हैं, उसे देखते हैं और उनके अंदर एक जज्बाती कैफियत पैदा होती है। और इसी मौके पर चूँकि जो शब उन्होंने गुजारी है वो ज़िक्र व अज़कार में गुजारी है, अल्लाह की किब्रियाई में गुजारी है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने में गुजारी है, नवाफिल का उन्होंने एहतमाम किया है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है और आने वाले दिन में दुनिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में अमन व अमान कायम रहे उसके लिए दुआएं की जाती हैं। और अलग सुबह जो नमाज फ़ज्र होती है उसके बाद जो मुँह मुबारक वहाँ मौजूद है उसे ज़ियारत के लिए सामने लाया जाता है और इस तरह वहाँ मौजूद तमाम जो अक़ीदतमंद हैं, जो हाज़रीन हैं, मर्द व ख़वातीन, वो इस मुँह मुबारक की ज़ियारत करते हैं। यानी पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के बाल जिसे मुँह मुबारक कहा जा रहा है उसका वो दीदार करते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं और इस जज्बानी और हिजानी कैफियत जो उन पर तारी रहती है इस दौरान वो अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर दे और जो ज़िंदगी है उसे आसान कर दे और साथ ही साथ अमन व खुशहाली जो है वो बरकरार रहे और इलाके की ही नहीं, सूबे की ही नहीं बल्कि मुल्क की भी और दुनिया की भी जो है अमन शांति वो बरकरार रहे, खुशहाली का मौका है। तो रईस मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। जी हमें बताएं आप क्या देख पा रहे हैं रईस? और ये अलग अलग मनाजिर कुछ देर कबल के जब शब गुजारी हो रही थी, लोग वहाँ दरगाह हज़रत बल पहुँच रहे थे और अपने अपने तरीक़े से जो है वो माफ़ी तलाफ़ी, अपने गुनाह की माफ़ी और आखिरत में भी उनके लिए बेहतर हो, दुनिया में भी उनके लिए बेहतरी हो, इसके लिए जब वो दुआएं कर रहे थे। और अब ये जो तस्वीरें हैं ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सुबह की, जब शब गुजारी के बाद नमाज फ़ज्र के बाद जो लोग भी वहाँ मौजूद हैं उन्हें मुँह मुबारक की ज़ियारत कराई गई है और अब वहाँ से कुछ लोग, कुछ ज़ायरीन जो है वो लौटने भी लगे हैं। रईस मैं आपके पास आना चाह रहा था, आप अगर हमें सुन पा रहे हो रईस हमें बताएं इस वक्त क्या हो रहा है? जी रईस बताएं। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोगों ने मोए मुक़द्दस की ज़ियारत की है और सुबह कल रात से ही यहाँ पे जो है पूरी शब खानी लोगों ने की, इसके साथ साथ दुरूद व अज़कार हुए, नात शरीफ पढ़े गए और कुरान की तिलावत हुई, इसके साथ साथ नफल नमाजें लोगों ने जो ज़ाहिरीन ने उन्होंने अदा की और अब जो है फजर नमाज के बाद उन्होंने मोए मुक़द्दस की ज़ियारत की है। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अभी लोग जो है वो इस दरगाह से बाहर निकल रहे हैं, अभी अपने घर जाएंगे पूरी रात यहाँ पे जो है इबादत करने के बाद। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भीषण ठंड जारी थी लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे पूरी रात जो है वो शब खानी हुई है और वक्फ बोर्ड की तरफ से खुसूसी इंतजाम यहाँ पे रखे गए थे। इस बार जो सबसे अलग वक्फ बोर्ड ने किया था वो ये था कि रिफ्रेशमेंट रखा गया था और इसके साथ साथ प्रॉपर हीटिंग अरेंजमेंट्स भी रखे गए थे जिसके चलते ये सुनिश्चित किया गया कि ज़ाहिरीन को कोई प्रॉब्लम ना हो और इस बार जो ज़ाहिरीन हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हुई है। जिस तरह से ठंड जारी थी तो उनको उस तरह से प्रॉब्लम नहीं हुई है। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि
अभी जो ज़ाहिरीन है वो इस दरगाह से बाहर आ रहे हैं, दरगाह हज़रत बल से। बता दें कि दरगाह हज़रत बल में ही सबसे ज़्यादा ज़ाहिरीन आते हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला से, दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग आते हैं। इस दरगाह में सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों की तादाद पाई जाती है। कश्मीर के जो और मेजर श्राइन्स है वहाँ पे भी इसी तरह के नज़ारे हैं। और हम आपको दरगाह हज़रत बल का इस वक्त जो है वो विजुअल्स दिखा रहे हैं कि शब खानी करने के बाद, मोए मुक़द्दस की ज़ियारत करने के बाद जो है अब लोग अपने घरों की ओर जो है वो निकल रहे हैं खुशी से, क्योंकि यहाँ पे खुसूसी दुआओं का उन्होंने एहतमाम किया है। अपने लिए दुआ मांगी है, कश्मीर के लिए दुआ मांगी है, पूरे मुल्क के लिए दुआ मांगी है कि पूरे मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहे, जो मुल्क है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और इसके साथ साथ जो भाईचारा है वो आपस में लोगों का वो बना रहे, उसके लिए खुसूसी दुआएं की गई है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा है कि जो यहाँ पे टारगेट किलिंग्स हो रही है, जिस तरह से इनोसेंट लोगों की किलिंग हो रही है, उस पर भी लोगों ने दुआ की है कि उस तरह की किलिंग जो है वो यहाँ पे रोके और कश्मीर जो है वो अमन व अमान यहाँ पे कायम हो और लोग जो है वो चैन की सांस ले सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से हालात बदले हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी खुश थे और लगातार इन दुआओं में मसरूफ़ हैं कि अमन जो है वो बरकरार रहे और लोग जो है वो आपस में भाईचारे के साथ रहे, ताकि जिस तरह से जो कश्मीर की खूबसूरती है, ये भाईचारा और अमन जो है उसमें चार चांद लगाता है। और यही वजह है कि लोग लगातार यहाँ पे दुआ कर रहे थे। पूरा जो शब महराज पूरी रात जो है यही खुसूसी दुआओं का एहतमाम हुआ, और अब जो है लोग खुशी से इस दरगाह से बाहर आ रहे हैं। अब वो अपने घरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पूरी रात जो है वो इबादत में मसरूफ़ थे और अब जो है वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और बिल्कुल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि दरगाह हज़रत बल की ये तस्वीरें हैं, जहाँ से लोग जो है अब घरों की ओर जा रहे हैं पूरी शब खानी करने के बाद। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोग जो है उन्होंने खुसूसी दुआएं की है और अब जो है वो घरों की ओर जो है वो निकल रहे हैं। जी विशाल। रईस, फिलहाल आपका शुक्रिया। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से दरगाह हज़रत बल में एक बड़ी तादाद जो है ज़ायरीन की वहाँ मौजूद थी। शब गुजारी के बाद, यानी रात भर में ज़्यादातर हिस्से में, रात के ज़्यादातर हिस्से में इबादत करना, इबादतों में रात गुजारना, नवाफिल का एहतमाम करना, तिलावत कुरान करना, ज़िक्र अज़कार करना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना और मुल्क में, सूबे में अमन व शांति के लिए दुआएं करना। इन सब के बाद फजर की नमाज के बाद सुबह मुई मुबारक की ज़ियारत कराई गई और अब वहाँ से धीरे धीरे जो ज़ायरीन है उनके जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर हाजिर होते हैं।